Hi, good evening. So today we can discuss what about place of supply? Guys, we have covered time of supply. Just tell me yes or no, yes or no. Yes. What about place of supply? Are you comfortable with that or should I just revise it once? Ma'am, it would be better if you revise it once. Oh, chalo, ठीक है. So today I'll pick place of supply, right? Input tax credit and I just want कि two topics में पुराने pick करूँ, two में new pick करूँ. So we can cover registrations also and new topic में से I will pick invoice. So we have covered, I think so. Accounts and records we can cover. Okay, TCS we can cover. TDS I think so we have covered last time, है ना? Okay, so from here we can pick small topic which we can wind up within 15 to 20 minutes. So TCS will be or accounts and records. ठीक है, तो ये हो गया. So it's better I'll pick अभी place of supply, right? Place of supply. So place of supply covers your section 10, 12, 13, 10, 11, 12, 13. ठीक है, that four sections जो हैं that covers your place of supply of goods and the services. So the importance of place of supply is basically this कि if I know the place of supply, according to that I can charge the GST tax like interstate or intrastate. That's mean IGST, CGST, SGST and UTGST I can charge according to that. है ना? So first of all, we should know the definition of inter and intra. That is okay, but I would like to tell कि it's better if you will again go through one. ठीक है? बिकॉज यहाँ पे जो सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 है आईजीएसटी एक्ट का दैट डील्स विद इंटरस्टेट डेफिनेशन से डील करता है तो वो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन डेफिनेशंस अभी है ना तो बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक विच आई हैव टू कवर एंड आई वांट टू कवर ऑल द टॉपिक्स चाहे मैं आपको बेसिक ही क्यों ना उसका एक बार डिस्कस कर सकूं so that will be better. So now, Abhi, we have to take section 10 of IGST Act 2017. It talks about place of supply of goods other than supply of goods imported into or exported from India. ठीक है? तो ये वाला जो है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दिस इज विद इन इंडिया इन शॉर्ट है ना विद इन इंडिया में अगर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फाइंड करना है तो हाउ वी हैव टू तो सबसे पहले है देयर आर आई थिंक सो 5 or 6 केसेस हैं दैट वी हैव टू रीड 3 4 5 5 केसेस राइट तो 5 केसेस है गुड्स के लिए एंड दैट्स वेरी वेरी सिंपल वेयर जो सर्विसेज है सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इट्स नॉट डिफिकल्ट आई से इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग क्योंकि वहां पे सेम सप्लाई ऑफ सर्विसेज है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया है ना बट जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है दैट बिकम लिटिल डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई so on that we need to work right because in MCQs that can be a part of your questions और प्लेस ऑफ सप्लाई से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं है ना तो वी विल फोकस ऑन दिस तो सबसे पहला है जो सेक्शन 10 डील करता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट डील्स विद प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स मीन्स जो गुड्स हैं आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो रहे हैं ठीक है तो कहते हैं एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ए ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 प्लेस ऑफ सप्लाइंग इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट ठीक है तो दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर
if I'm the dealer of Punjab and you are the recipient in Delhi, so if I'm supplying goods from Punjab to Delhi, right? So what will be the place of supply in case of goods? You can just reply me in chat box. I'm waiting, है ना? Because I know that much understanding you have about this section because already you have read in interstate है इंटर स्टेज के अंदर आपने पढ़ा है. सो आप लॉ की जो लैंग्वेज है दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ठीक है, so very nice. So here if movement of goods is involved, so where will be the delivery will be terminate, that place we will consider as a place of supply of goods. ठीक है, so Delhi will be the place of supply. Now, just I think so example need to consider. I'll just pick it once if you want, है ना? So location of a supplier is the Karnataka. Delivery of goods जो दी गई है that is in Andhra Pradesh and place of supply is also AP. So nature of supply is interstate and IGST will be levied. ठीक है, तो that is okay. तो यहाँ पे कुछ problem नहीं था. Now, point number two, section subsection number 2 is important and usually यहाँ पे mistakes हो सकती हैं, so we will focus on this point. So here, what is the place of supply where the goods are delivered to a person on the direction of a third person, right? तो यहाँ पे क्या होगा? जो ये केस है, हमें we have to find out the place of supply in case where third person gives direction to the supplier that you have to supply the good to that place. वो अपने प्लेस पे ना मंगवा के किसी और प्लेस पे डिलीवर करने को बोल रहा है. So we will consider the place of supply of that goods जहाँ पे वो डिलीवर हुए हैं, या we will consider the place of supply of that third person who is giving the instructions. Do you have any idea? Yes and no? Okay. जैसे कि आई गिव यू प्लेस ऑफ दैट थर्ड पर्सन, राइट मयंक. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वेयर इट इज डिलीवर्ड. नो निधि, नो नो नो. सो नाउ देखो ये वाले जो केसेस है ना ये बहुत स्पेसिफिक है. तो जो केस 1 हमने पढ़ा, सबसेक्शन जो हमने 1 पढ़ा था, दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स. ठीक है, वहां पे आपको कंसिडर करना है डिलीवरी ऑफ गुड्स, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई. But now subsection 2 is very specific and it specifies that if जो goods हैं, goods की जो delivery है वो provide की जा रही है on direction of a third person. ठीक है, तो हमें क्या कंसिडर करना है? तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, जैसे कि आई गिव यू एग्जांपल, आई एम द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड यू आर द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड थर्ड पर्सन मुझे कहता है कि जो रेसिपिएंट है, आई टेक एग्जांपल ऑफ रेसिपिएंट, कि रेसिपिएंट मुझे कहता है कि सर आपने मुझे गुड्स जो है पंजाब में ना पहुंचा के आप दिल्ली में डिलीवर करवा दीजिए गुड्स. ठीक है, तो इन केस वी विल आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गुड्स हैं वो कहीं और जा रहे हैं और डायरेक्शन मुझे कोई और दे रहा है. ठीक है, तो इन दैट केस तो यहाँ पे कहता है कि जो थर्ड पर्सन आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि जो गुड्स हैं वो आपने कहीं और डिलीवर करने हैं, आपको उस थर्ड पर्सन का एड्रेस कंसिडर कर लेना है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. ठीक है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो पर्सन जहां से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है दैट प्लेस. तो हम इसका एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं. Now, wow, I have 4 examples for this, right? Okay, तो यहाँ पे कुछ सही एंड रॉन्ग एंड राइट भी हो सकते हैं, so don't go with the answers. So location of a supplier is Karnataka. Otherwise, you can refer your book. आपकी जो book के अंदर examples दिए हैं, they are very very nice, है ना? So even I can pick example from there also if you are comfortable. Let me see. तो it's better ना, आपका वो भी clear हो जाएगा. But उसमें find करने पड़ते हैं. I need to find it. 274, right? Right.
where supply does not involve movement of goods, ये वाला भी नहीं है. Goods are assembled at sites, ये भी नहीं है. Goods supplied and conveyance, ये भी नहीं है. कहाँ पे है? Supply does not involve movement of goods, ये वाला है आपका. यहाँ पे तो दिखाया है उन्होंने सेकंड नंबर पे, बट यहाँ पे कहाँ पे है? सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके. दे हैव नॉट मेंशन. ओके, तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल है. आई जस्ट टेक एग्जांपल फ्रॉम योर बुक सो दैट आपको आइडिया भी हो जाएगा. मिस्टर सी ऑफ चेन्नई, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, but it should be already. I have shared. Now is it? Image is not clear. Okay. Okay. Now is it okay? Just tell me, Nidhi. Yes. Okay. Right. So example number 4 है. It's from your book only. Mr. C of Chennai receives purchase order from Mr. H of Hyderabad for want of commercial goods. Okay. Now supply involves movement of goods by supplier from Chennai to Hyderabad road upon the okay, right. एक बार just go through with the question. Sorry. हैदराबाद. ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे वन पर्सन इज चेन्नई. आई थिंक सो ही इज द सप्लायर ऑफ द गुड्स, है ना. एंड देन हैदराबाद का एक पर्सन है जो वांट्स गुड्स चाहता है, राइट. देयर इज नो वॉइस. क्या हो रहा है आज? क्लियर है सीमा? अपॉन दी. ओके, तो यहाँ पे 3 पर्सन है हमारे पास. वन इज मिस्टर सी फ्रॉम चेन्नई. आई थिंक सो ही इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स. देन मिस्टर एच हैदराबाद का जो एक ऑर्डर प्लेस करता है मिस्टर सी को, एंड वो कहता है, एंड वन मोर पर्सन इज हियर. अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद, these goods are redirect to branch office of Mr. H located in Vijayawada. तो जो मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद हेड ऑफिस है, राइट. तो जो हेड ऑफिस वाला है, आई थिंक सो उसने ऑर्डर प्लेस किया है. तो मुझे ना ये डायग्राम समझने में बहुत डिफिकल्ट होता है. मिस्टर एच जो है हैदराबाद का हेड ऑफिस का, ही प्लेस्ड वन ऑर्डर टू मिस्टर सी चेन्नई, एंड मिस्टर एच हैदराबाद हेड ऑफिस सेज कि यू हैव टू डिलीवर द गुड टू ब्रांच ऑफिस. ठीक है, तो गुड्स जो है वो ब्रांच ऑफिस जा रहे हैं, बट जो डायरेक्शन दे रहा है वो हमारा हेड ऑफिस है. ठीक है, तो एज पर दिस क्लॉज सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर एज अ हैदराबाद. ठीक है, जो पर्सन, जो थर्ड पर्सन डायरेक्शन दे रहा है, अब जो गुड्स मूव हो रहे हैं वो उस थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे गुड्स मूव हो रहे हैं, राइट. तो वी विल कंसिडर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस थर्ड पर्सन, राइट. तो देयर इज एनी डाउट? नो. मेरा पीडीएफ आपको विजिबल हो रहा है? माय पीडीएफ इज विजिबल टू यू? ये ओके, ठीक है, तो हम ये स्वैप कर सकते हैं, राइट. तो आई एम नॉट टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम हियर, है ना, बिकॉज अगर आपको वहां से क्लियर हो गया तो दैट इज ओके. अगर नहीं हुआ है तो आई कैन डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स विद यू. तो आई थिंक सो दैट इज क्लियर. ओके, नाउ third case is where the movement of goods is not involved. So I'll just give you 2 examples. कहता है where the movement of goods is not involved, then what will be the place of supply in case of goods? So I'll give you the पहला सबसे basic one example. कि for example, if you visit to the big bazaar, right, and there you purchase lots of things, you buy goods, and you, then what will be the place of supply in that scenario? Can you tell me? If you visit to the Shopper Stop, Lifestyle and Big Bazaar and you buy goods, for example, you bought the electronic from there, TV or refrigerator, whatever,
then what will be the place of supply in that case? Location of that good. Okay, nahi, abhi not exact answer. And then someone else, from where the instruction has given. Geeta, we are working on the next case. We are not working on the third person direction wala. So location of the buyer or house. No. Rukshita, no. Look, there is, I just want to tell you the meaning of where movement of goods is not involved. Place where goods are delivered. This, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. I'm not getting your voice. Okay, location of goods at the time of delivery of recipient and delivery, location of that good at the time of delivery. So मैं this is correct word, ठीक है, sentence. So यहाँ पे कहते हैं कि देखो ये वाला जो केस है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है. मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि जब सप्लायर एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स मूव करता है, ठीक है, वो होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स. जहां पे हमने केस 1 पढ़ा था, ठीक है, दैट वाज द मूवमेंट ऑफ गुड्स कि सप्लायर अपनी शॉप से आपके घर तक एसी डिलीवर करवा रहा है, तो दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स. ठीक है, उस केस के अंदर आपका प्लेस, आपका घर, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई था. बट नाउ क्या हो गया कि आप शॉपकीपर से कहते हैं कि आप मेरे घर पे एसी नहीं भिजवाइए, मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा हूं, अपनी गाड़ी के अंदर ही मैं एसी रख लूंगा. तो जो आपने क्या किया, आपने डिलीवरी वहीं पे ले ली जहां पे वो गुड्स पड़े हुए थे. ठीक है, आपने कहां पे ले ली, उसकी शॉप पे ही ले ली. जैसे कि टेलीविजन का एग्जांपल लेते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप होम सेंटर गए या आप कहीं पे भी गए, आपने वहां पे टेलीविजन आपको पसंद आ गया, ठीक है, आपने टेलीविजन परचेज कर लिया, आपने उसे वहीं पे हैंड ओवर ले लिया और आप उसे खुद से बाय योर सेल्फ आप वो गुड्स उठा के अपने घर लेके जा रहे हैं. ठीक है, तो जो मूवमेंट ऑफ गुड्स था वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, डिलीवरी आपने वहीं पे अवेलेबल करा ली अपने आप के लिए, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ जो गुड्स है वो इन्वॉल्व नहीं था. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस. तो कहते हैं जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है उस केस के अंदर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर करना है. तो जी कहते हैं इन दैट केस आपको वही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेना है जहां पे आपने डिलीवरी ली है गुड्स की. ठीक है, तो दैट लोकेशन ऑफ द बायर, मतलब दैट लोकेशन वेयर द गुड्स अवेलेबल, जहां पे गुड्स अवेलेबल है वही आपका कंसिडर कर लिया जाएगा. इज देयर एनी डाउट इन दिस? Then I will explain another question, another example. No. So that was इसके I always give two example. One is basic one and second one is थोड़ा सा typical one. तो जो basic one है वो हमेशा हमें याद रहता है कि जैसे कि मैंने आपको बिग बाजार वाला एग्जाम्पल दिया था या टेलीविजन वाला आपको एग्जाम्पल दिया कि आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आपको वहां पे सामान परचेज आया, आपने गुड्स परचेज किए और आपने वहीं पे उनकी डिलीवरी ले ली. ठीक है, तो जो बिग बाजार की लोकेशन है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, जहां पे गुड्स ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं थी. दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, बेसिक एग्जाम्पल. नाउ टिपिकल एग्जाम्पल इज दिस, जो आई थिंक सो आई हैव मेंशन ये वाला. ठीक है, ये वाला. सो ये वाला एक बार आप रीड करेंगे एंड इन दिस केस यू हैव टू टेल मी, एक तो ना you have to tell me the answer. Just take a 1 minute and tell me the answer. And it's not mandatory कि ये वाला जो example है वो इसी clause से belong करता है. Chennai is the place of supply. Place of supply is Hyderabad. Okay, so let me read the question first. So here Mr. X Limited has a place of business in Chennai. Okay.
being an NBFC given an asset, I think so non financial जो देते हैं, given an asset under lease, हाँ lease से related है, so lease finance lease to Messer ABC Limited of चेन्नई। तो हैदराबाद वाले जो हैं I think so उन्होंने उसको लीज किया है एसेट को टू ABC Limited को, राइट? चेन्नई, दोनों चेन्नई की हैं। So the said assets so far used by the ABC Limited in their factory located at Hyderabad. Okay, तो जो चेन्नई वाले हैं उन्होंने जो एसेट था उसको हैदराबाद में शिफ्ट किया था और वहां पे they were using. So at the end of the lease period, the said asset acquired by ABC Limited at a nominal amount. ठीक है? So find the place of supply of goods and levy GST. Okay, so who said Chennai? Okay, one Rukshida said Chennai, and who said okay, Vish is here also. Mayank also said Chennai. Okay, Geeta also said Chennai. You want second thought? Rukshida said Chennai. Again, you are saying Chennai. Chetan said Chennai. Okay. So I would like to tell you, dear, देखो यहाँ पे क्या है कि जो अब गुड्स पड़े हुए हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं? अल्टीमेटली हैदराबाद लोकेशन पे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो इसी चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कहते हैं दो पार्टीज हैं, सप्लायर एंड द रेसिपिएंट, उन दोनों की आपस में डील हो गई एंड दे आर फ्रॉम चेन्नई इटसेल्फ, ठीक है? बट जो गुड यूज किए जा रहे हैं, जो मशीनरी यूज की जा रही थी, वो हैदराबाद में यूज की जा रही है, राइट? तो यहाँ पे ए एंड बी जो है चेन्नई के, उन्होंने आपस में डील कर लिया। पहले वो यूज कर रहे थे उसको एज अ सर्विसेज के जैसे यूज कर रहे थे, बट जो बाद में रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वाला था, वो कहता है, वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि आई वांट टू बाय योर मशीनरी। तो वो कहता है कि ठीक है, आप ले लीजिए मेरी मशीनरी। तो इन दोनों की डील हो जाती है। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एज पर क्लॉज दिस, यहाँ पे देखो गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है एट द टाइम ऑफ सेल, राइट? सेल हो गई है ना, सेल इन प्लेस ने जो सेल थी वो हैपन हुई है यहाँ पे, बट यहाँ पे गुड्स की जो मूवमेंट थी वो इन्वॉल्व नहीं थी। गुड्स पड़े हुए हमारे हैदराबाद में, इन दोनों ने बैठ के डील कर ली चेन्नई में, ठीक है? तो और हमें यूज भी करने हैदराबाद में ही है। तो कहते हैं इन दिस केस जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा दैट विल बी कंसिडर्ड जहां पे गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है? तो गुड्स कहाँ पे पड़े हुए हैं जी? आपके हैदराबाद में पड़े हुए हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन सेल की हुई है लेकिन मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ गुड्स का। तो हैदराबाद विल बी द लोकेशन, right? Is there any doubt? Still you have doubt? किसी को भी है? You may ask, because this is very very important. तभी I always give two example. एक मैं बहुत basic वाला example देती हूँ और second वाला ये थोड़ा सा typical example होता है, ये मैं देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इसका concept जो है वो usually clear हो जाता है। Now next is, now what is the place of supply in case of assembly or installation of goods at site? कहता है इस केस के अंदर क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ साइट एट उत्तराखंड, ठीक है? हम उत्तराखंड में हमारा एक पावर प्लांट चल रहा है और वहां पे मेरे को एक मशीनरी जो है वो इंस्टॉल करवानी है या असेंबल्ड करवानी है, ठीक है? तो वो वाला केस है। कहता है इन दैट केस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड क्या कंसिडर किया जाएगा? तो दिस इज वेरी मच क्लियर, वेयर द गुड्स आर एग्जैक्टली, मयंक वेरी राइट। So where the goods are assembled or installed at site, the place of supply shall be the place of such installation or assembly. तो जहां पे भी आपके वो गुड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, असेंबल किए जा रहे हैं, दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे कि आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, अभी हम ये यहाँ पे जो बुक के अंदर मेंशन है वो भी ले लेंगे। रॉ लैंग्वेज के अंदर इफ आई शेयर कि आई एम फ्रॉम गुड़गांव, ठीक है? एंड द person is also, another person is also from गुड़गांव, एंड मैं उस पर्सन को अप्रोच करती हूँ कि मेरी एक उत्तराखंड में साइट है, हमारा पावर हाउस है, वहां पे जाके आपको मशीनरी इंस्टॉल करनी है। तो वो पर्सन कहते हैं ठीक है। अब हम दोनों वी आर फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा, ठीक है? तो लेकिन इस केस के अंदर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? तो कहता है जहां पे भी आप गुड्स जाके असेंबल कर रहे हैं दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हाँ जी, हमने गुड्स अपने असेंबल करवाए हैं, इंस्टॉल करवाए हैं उत्तराखंड में, ठीक है? तो दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट? ग्रेट। तो
अगर आपको ये क्लियर हो गया तो ओके, अदरवाइज आई विल टेक दिस इलिस्ट्रेशन. दिस इज ओके? क्लियर, वेरी नाइस. नेक्स्ट इज, what is the place of supply in case of goods sold on aircraft, train, vessel, etc. अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि इफ यू नो चंडीगढ़ से एक शताब्दी चलती है टू दिल्ली, है ना, और दिल्ली से वही शताब्दी वापस आती है चंडीगढ़, या चंडीगढ़ से अमृतसर एक शताब्दी चलती है. तो ड्यूरिंग द जर्नी दे यूज टू प्रोवाइड फूड पैकेट्स, है ना. तो जो फूड पैकेट्स हैं वो हमारे गुड्स हैं. तो अच्छा, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही आ जाएगा कि दिस यू विल कंसिडर दिस एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई. दिस इज योर क्वेश्चन. What you will consider this? This you will consider as a mixed supply or composite supply? Mixed. Urvashi said mixed. Okay, so here is I am traveling. Okay, so the main supply is my that journey. Okay, और उसके साथ along with that I am getting food packets, right? So this is mixed supply or composite. So you said it is a mixed supply. Okay. Now I will give you another example. If you are traveling by air, place where the goods are taken on board. अरे मयंक, इस मतलब आप बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे हो. अभी पहले मेरे को मिक्स्ड एंड कॉम्पोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द राइट आंसर. एंड आई थिंक सो वी हैव डिस्कस कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, है ना. हाँ जी. तो नाउ दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई. अगर आपने आंसर मिक्स किया था, दैट वाज रॉन्ग. दिस विल वी विल कंसिडर एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई. अभी मैं आपको वही एग्जांपल दे रही थी कि इफ यू आर बाय एयर आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी यही होता है ना कि आपका जो मेन सप्लाई है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, दैट इज योर ट्रेवलिंग, है ना. बट यू गेट देयर फूड पैकेट, आपको वहां पे भी मील मिलता है, तो दैट इज योर कॉम्पोजिट सप्लाई, राइट. तो अगर आप जर्नी कर रहे हैं और उसके साथ आपको फूड पैकेट प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज कम्स अंडर कॉम्पोजिट सप्लाई. वो नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है. तो जो ट्रेवलिंग का टैक्स रेट है ना, वो आपकी उस कॉम्पोजिट सप्लाई के ऊपर चार्ज किया जाएगा, राइट. नाउ तो ये तो मिक्स और कॉम्पोजिट का मैंने आपका टेस्ट ले लिया अभी बैठे बैठे. दैट इज ओके. हाँ, so we were talking about कि what will be the place of supply in case of goods sold on aircraft or train or vessel etc. ठीक है. तो जैसे I was giving example कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रेवल करती हूँ, ठीक है, एंड ड्यूरिंग लाइक बीच में क्या आता है, करनाल. ओके, तो बीच में करनाल एक प्लेस आता है, राइट. तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और करनाल के अंदर वो मुझे फूड पैकेट डिलीवर करते हैं, ठीक है, जिसके लिए ऑलरेडी आई हैव पेड इन इनवॉइस. जो अब मेरा बिल रेस हुआ था उसके अंदर मेरा है. तो अब आप मुझे बताइए, मैं चढ़ी हूँ, मैं जस्ट बोट किया है फ्रॉम दिल्ली. ड्यूरिंग द जर्नी इन करनाल आई रिसीव द पैकेट ऑफ फूड एंड आई हैव टू गो चंडीगढ़, ठीक है. तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? दैट विल बी दिल्ली, करनाल or Chandigarh in case of this goods sold on aircraft or train. Okay, so I'm getting answer Delhi, Chandigarh. Okay, why so? एक minute, let me see why there is lots of confusion. Okay, just wait, huh? दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली. ओके, किए थे, हाँ जी, हाँ जी. जो परचेज किए थे वो दिल्ली से किए थे या करनाल से किए थे? ओके, गुड्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पैकेट्स. यस यस मैम. ओके, करनाल में मुझे मिले ना, जो मुझे सर्विस प्रोवाइड की गई है ना, वो मुझे करनाल में प्रोवाइड की गई है. मैं दिल्ली से बैठी हूँ ट्रेन के अंदर, बट जो उन्होंने मुझे फूड पैकेट, जो मुझे खाना, राइस, चावल और जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने मुझे करनाल में प्रोवाइड किया. ओके, तो उन्होंने तो दिल्ली से ही गुड्स परचेज किए थे ना. ओके, तो यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन रेलवेज कि उन्होंने जो गुड्स बोर्ड किए हैं वो दिल्ली से किए हैं, राइट. यस मैम. ओके ओके, हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली से किए हैं उन्होंने. ओके, तो फिर दिल्ली आएगा आई थिंक सो. ओके, राइट. चलो देखते हैं. नाउ आई एम गेटिंग न्यू आंसर्स. करनाल, where such goods are boarded. Okay, so ma'am, Karnal is the place of supply. Okay, so I would like to tell you, अगर ये आपका MCQ है और जिन
अगर इफ यू आर रिप्लाइंग मी दिस चंडीगढ़ एंड करनाल तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो यू विल लूज योर मार्क्स ओवर हियर, so your answer will be Delhi. अब दिल्ली क्यों होगा? Where the goods has taken on board, जहां से वो goods चढ़ाए गए हैं, that place we will consider as a place of supply. We are not talking about here, मतलब in this clause we have not to consider this कि आपको कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की गई है, वो मील आपको कहाँ प्रोवाइड किया गया, we are not talking about this, ठीक है। तो जहां पे भी वो गुड्स ऑन बोर्ड किए गए हैं, मतलब दिल्ली से किए गए हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, ठीक है। अगर मैं कहती आपको कि दिल्ली चंडीगढ़ में ट्रेवल कर रही हूँ और जो गुड्स हैं, मैं तो दिल्ली से चढ़ी हूँ ट्रेन के अंदर, ठीक है, लेकिन जो गुड्स हैं वो करनाल से बोर्ड किए गए हैं ट्रेन के अंदर, देन व्हाट विल बी योर आंसर? दैट देन अगेन योर आंसर विल बी सेम कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट नाउ, राइट। तो नाउ अगर जो गुड्स करनाल से बोर्ड किए गए हैं ट्रेन के अंदर, तो हमारा आंसर होगा करनाल, जहां से गुड टेकन ऑन बोर्ड किए गए हैं, ठीक है। तो लॉ की लैंग्वेज में देखते हैं, दे हैव मेंशन कि where the goods are supplied on board on a conveyance including vessel, aircraft, train, motor vehicle, the place of supply shall be the location at which such goods are taken on board, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि इसमें आई हैव रिसीव लॉट्स ऑफ रॉन्ग आंसर्स। ओके, सो अभी आई जस्ट टेक दिस एग्जांपल, है ना, लेट्स सी क्या बोलते हैं यहाँ पे। Mr. C of Chennai, right, supply goods to SpiceJet Airlines of Chennai, flying between Delhi to Mumbai. Okay, now look, जो SpiceJet एयरलाइन है ऑफ चेन्नई फ्लाइंग between, वो भी चेन्नई की है, और मिस्टर सी ऑफ चेन्नई जो मतलब सप्लायर है गुड्स का, वो भी चेन्नई का है, और जिसको सर्विसेज दी जा रही हैं, द पर्सन हु इज रिसीविंग द सर्विसेज, दैट स्पाइसजेट एयरलाइंस, वो भी चेन्नई की है, ठीक है। लेकिन जो फ्लाइट है स्पाइसजेट एयरलाइंस ऑफ चेन्नई, वो कहाँ फ्लाई करती है? बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। तो कहता है गुड्स आर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट इन दिल्ली, ठीक है। तो जो गुड्स लोड किए गए थे एयरक्राफ्ट के अंदर, वो दिल्ली में किए गए हैं। And now your question is, find the place of supply of goods and levy of tax. So place of supply is Delhi, and yes, and transaction will be IGST. तो integrated GST जो है आपका वो चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो केसेस हैं, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द बायर एंड सेलर, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर केसेस दे हैव टेल कि इन केसेस के अंदर जो है आपको ये जो उन्होंने बताया है यही कंसिडर करना, ठीक है। तो लाइक जैसे कि जो सप्लायर है, आई कंसिडर कि ये रजिस्ट्रेशन भी इसने चेन्नई में ले रखा होगा, ठीक है। नाउ स्पाइस जेट की बात करती हूँ, वो चेन्नई की है तो उसने चेन्नई में ले रखा होगा। नाउ आई कम टू द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, दैट इज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के अंदर वो कहते हैं कि जहां से भी आपको टैक्सेबल सप्लाईज करनी है, फ्रॉम वेयर यू वांट टू मेक टैक्सेबल सप्लाईज, इन दैट स्टेट यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो नाउ अब मेरे को टैक्सेबल सप्लाईज जो प्रोवाइड करनी है दिल्ली एंड मुंबई से करनी है ना, तो यहाँ पे भी मैंने डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन लिए होंगे। तो नाउ अब जो मेरी ट्रांजेक्शन होगी वो मेरी आईजीएसटी कंसिडर की जाएगी। मतलब ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिए, बट जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तब मैं ये आपको चीज क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो भाई मैं ये बोल रही थी कि देखो, बोथ बायर जो सेलर है एंड द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज एंड गुड्स है, दे आर फ्रॉम चेन्नई, बट जो गुड्स हैं वो कहाँ बोर्ड किए गए हैं, टेकन ऑन बोर्ड किए थे, कहाँ पे लोड किए गए थे एयरक्राफ्ट में, वो दिल्ली में गए थे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू एंड मी, है ना। तो हम यहाँ पे गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड करने की बात कर रहे हैं। तो जो गुड्स हैं वो दिल्ली से बोर्ड किए गए हैं, लोड किए गए हैं, तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इन सच अ मैनर यू हैव टू आइडेंटिफाई। Oh, that was it. तो 5 केसेस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं इसके अंदर, दैट्स इट।
तो गुड्स का बहुत वेरी वेरी सिंपल है. सो वी हैव 5 केसेस. वन इज वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व. ओके, एक मिनट. So Sheetal saying कि ma'am, one doubt, we have the option of traveling without taking food on plane. Yes, still food if consumed on flight. Okay, still food. Still food का मतलब मुझे समझ नहीं आया. If consumed on flight will be a composite supply. It's not our current topic, hence posting privately. एक मिनट, let me understand. शीतल, मुझे कुछ लाइंस इसमें क्लियर नहीं है ना. या तो आप एक बार माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बता दीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, है ना. Ma'am, am I audible? हाँ जी, यस. Ma'am, if we choose the option of taking food on flight and we do consume it, so it is considered as a composite supply, means we do have the option of traveling. We can say no, we don't want food on flight. राइट, ठीक है. It's not necessary to take it on flight. So it's not that if I travel, I do have to consume food. So, राइट, but ठीक है. if I do consume, do I have to take it as composite and not mixed? राइट, ठीक है. आई जस्ट एक्सप्लेन इट. सो Thank नाउ you. यहाँ पे अभी यहाँ पे किनका क्वेश्चन था? आई जस्ट फॉरगॉट इट. शीतल. या शीतल आस्क्ड मी द क्वेश्चन. ठीक है. शी इज सेइंग कि इफ शी इज ट्रेवलिंग बाय एयर and she does not opt the option of meal, कि उनको नहीं चाहिए while traveling, है ना. So that will be considered as a composite supply or yes or not. तो अगर if I talk about the from the point of view of SpiceJet, है ना, basically they are providing the composite supply to their passengers. They are providing the principal supply, that is traveling, है ना, and along with that they are providing you the meal. ठीक है. So they are providing a packet, they are providing with the bundle services. So from the point of view of jet services, so they are providing you composite services. ठीक है, supply provide कर रहे हैं. Now it comes to you, you want to opt it or not. This is your personal wish. ठीक है. तो यहाँ पे they will not charge. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं. हम ये पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं फ्रॉम दैट सप्लायर ऑफ द सर्विसेज जो सप्लाई कर रहा है. ठीक है. अगर आप मील ले रहे हैं तो कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया. अगर आप मील नहीं ले रहे हैं तो दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई, है ना. तो दैट इज ओके. तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. तो जो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, क्योंकि सप्लायर इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स. ठीक है. हु इज लायबल टू कलेक्ट एंड पे द टैक्स टू द डिपार्टमेंट. तो अगर मैं स्टेट हूँ, मैं आपसे चार्ज कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 15,000 फॉर अ ट्रैवलिंग के लिए. ठीक है. तो उसके साथ मैं आपको ऑप्शन भी देती हूँ कि आपको मील भी प्रोवाइड किया जाएगा, और दैट कम्स टू रुपीज फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज. ठीक है. 20,000 रुपीज के ऊपर अगर मेरा ट्रैवलिंग के ऊपर 12% का रेट है और मील के ऊपर मेरा 5% का रेट है, तो 12% मैं पे करूंगी 20,000 के ऊपर. ठीक है. बट अगर आप उसे कहते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर दिस, तो सिंपली आप तो 15,000 के ऊपर जो भी आपका 12,000 15,000 का बिल है उस पे करेंगे. तो आप तो कॉम्पोजिट सप्लाई में नहीं आए, है ना. समझा मैम. थैंक यू वेरी मच. तो वी हैव टू जस्ट थोड़ा सा आइडेंटिफाई कि हु इज द सप्लायर, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन आती हैं. लाइक अभी रजिस्ट्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो एक बार मैं प्लेस ऑफ सप्लाई का जो टॉपिक है दैट आई विल टच, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. तो अगर आपके पास जब टाइम होगा आफ्टर फाइनल ईयर एग्जाम, you may start working on GST, just go through with it. क्योंकि अगर आप एक बार CMA बन जाते हैं तो देयर आर वाइडर स्कोप ऑफ GST. आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज अ GST कंसल्टेंट कर सकते हैं, आप GST में टीचिंग कर सकते हैं, नो आप ऑडिट वगैरह कर सकते हैं. तो इट्स बेटर कि आप GST के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से क्लियर करें सब. ठीक है. ओके. तो हमारे इसके गुड्स के केसेस के अंदर हमारे 5 केसेस थे जो हमने इसमें रीड कर लिए. नाउ आई कम टू दी सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है. तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है हमारा, आई नॉट से इट अगेन, इट्स डिफिकल्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. सो वी हैव टू
keep our focus here on section 12. Section 12 जो है that deals with your place of supply of services within India. ठीक है, so section 12 of IGST Act deal with the place of supply of services within India, and section 13 deals with place of supply of services outside India. ठीक है, तो within India and outside India जो हम cases पढ़ेंगे they all are almost same, बस place of supply जो है वो हमारा different हो जाएगा. ठीक है, तो like यहाँ पे देयर इज वन डिफॉल्ट रूल. डिफॉल्ट रूल इज व्हाट बेसिकली, अभी हम स्पेसिफिकली कुछ केसेस पढ़ेंगे सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से लेके 13 तक, तो उनके लिए वो पर्टिकुलर सेक्शंस एप्लीकेबल हैं. बट इफ वी आर नॉट, मतलब ऐसे नहीं कि अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर द पर्सन एंड आपको मैंने बोला है कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है और आप नहीं कर पाए तो आप सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 लगा देंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है. अगर आप बाय लॉ अगर आप किसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अब वहां पे यू आर नॉट एबल कि आप किसी भी केसेस के अंदर फॉल नहीं करें जो नीचे मेंशन है सबसेक्शन 3 से लेके 14 तक, अगर आप उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जो हमारा डिफॉल्ट रूल है वो आपको यूज कर लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वो रूल, एक बार वो रीड कर लेते हैं. कहता है अगर जो सर्विसेज हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14 made to a registered person shall be the location of a such person. ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं किसी को तो आपने क्या कर लेना है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आपने उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन यू हैव टू कंसीडर कि हम वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. ठीक है, फिर कहते हैं कि अगर हम वो मेड टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वी हैव टू टाइप ऑफ पर्सन, या तो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा. तो रजिस्टर्ड वाला है तो हम हमारे पास उसकी वी हैव लोकेशन ऑफ दैट पर्सन, वी विल कंसिडर दैट लोकेशन. बट इफ द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, तो अगर आप यू आर द रजिस्टर्ड पर्सन एंड यू आर सप्लाइंग सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, so you must be having the records, you must be having his address on your records, so you have to consider that. But if you says कि no I don't have record of that person, तो आपको क्या करना है, in that case location of the supplier of services will be considered. जैसे इसका एग्जांपल मैं दूंगी. फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ठीक है, तो मेरे साथ जो पर्सन सीट शेयर कर रहे थे, ही सेड कि मेरे को अपनी आपसे जीएसटी रिटर्न फाइल करवानी है. ठीक है, तो दैट पर्सन इज अननोन टू मी एंड ही इज द इंडिविजुअल, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट रजिस्टर्ड, सो आई एम टेकिंग इट एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, बट आई एम द रजिस्टर्ड पर्सन और मे बी आई एम नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी. तो मैं अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई हम फाइंड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन को मैं सर्विसेज दे रही हूँ ही इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसका एड्रेस मेरे रिकॉर्ड्स में नहीं है बिकॉज ही इज न्यू टू मी. ठीक है, तो ये वाला क्लॉज मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. सो नाउ लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी कंसिडर्ड. नाउ फॉर एग्जांपल आई एम रजिस्टर्ड, है ना, आई टुक द रजिस्ट्रेशन इन पंजाब, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज पंजाब, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर हियर इज पंजाब. ठीक है, so in such a manner you have to think and you have to apply such clauses. Now we come to this particular case, section 12 subsection 3, it says place of supply of services directly in relation to an immovable property. कहता है if you are providing services to such immovable property पे जाके if you are providing services, then what will be the place of supply of your services. जैसे कि I am a architect, ठीक है, so one company consults me and says कि मैम हमें कुछ आपसे इंटीरियर की सर्विसेज करानी है, मुझे कुछ आपसे आर्किटेक्ट की सर्विसेज चाहिए. तो मैं कहती हूँ ओके ठीक है, आई एम ऑलवेज रजिस्टर्ड इन पंजाब, और जिस कंपनी ने मुझे अप्रोच किया दैट कंपनी इज फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा, एंड वो कहती है कि मैम ये जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है दैट यू हैव टू प्रोवाइड इन मुंबई महाराष्ट्र में करनी है. Then what will be your answer in this case? So the clause is the place of supply of services in directly in relation to an immovable property. ठीक है, तो यहाँ पे clearly they have mentioned कि जहां पे immovable property पे जाके आप अपनी services provide कर रहे हैं, ठीक है,
that place we will consider as a place of supply of services. ठीक है, तो with such immovable properties located. Very nice. ठीक है, तो महाराष्ट्र will be the place of supply in this particular case. ठीक है, now तो ये मैंने आपको भी लॉ पढ़ने से पहले ही दे दिया. तो लाइक दे हैव मेंशन कि आर्किटेक्ट की सर्विसेज होती हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दी जाती हैं, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज हो गई, सर्वेयर की सर्विसेज हो गई, इंजीनियर की सर्विसेज हो गई. ठीक है, और इनके रिगार्ड जैसे फॉर कैरी आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, सच काइंड ऑफ सर्विसेज जो कि आपको मैम स्टडी मैट नॉट विजिबल गाइस, इट्स नॉट विजिबल. अभी मैं स्टडी मैट से नहीं पढ़ा रही थी, अभी आई एम जस्ट यूजिंग माय नोट्स. वो भी विजिबल नहीं है. इट्स विजिबल, मेरी साइड से तो विजिबल है. नो, नो वन कैन सी द पीडीएफ फाइल. इट्स विजिबल. रुक्षिता, यू जिसको प्रॉब्लम आ रहा है, यू जस्ट चेक इट, है ना, आपने कुछ किया होगा, बिकॉज इट्स विजिबल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स, है ना. ओके, तो यहाँ पे एक तो ये वाला सर्विसेज हो गया. व्हेन यू आर गोइंग टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग सर्विसेज, देन यूर इज होटल. होटल भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है. यू आर गोइंग टू होटल एंड यू आर गोइंग टू स्टे देयर, तो दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, देन होटल हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, होम स्टे हो गया, क्लब कैंप साइट जहाँ पे जाके आप ये कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है, वो अपनी एम्प्लॉइज को अब उनका फाइनेंशियल टारगेट मीट हो गया एंड दे प्रोवाइड कि आप जाके कैंप साइट कर सकते हैं, एंड एम्प्लॉइज गोइंग फॉर अ कैंप साइट. ठीक है, वो जाते हैं शिमला हिमाचल जाते हैं, तो दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल्स हैं. यू मे जस्ट गो थ्रू विद दैट. ओके, सो देयर दे हैव वन मोर subsection like section 12 subsection 3 C, marriages and reception जहाँ पे किए जाते हैं, that place they have also considered as an immovable property. ठीक है, तो like इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज हो गई, इंजीनियर की सर्विसेज हो गई आपकी, एंड दैट इज योर सर्वेयर्स, आर्किटेक्ट्स की सर्विसेज, होटल इन गेस्ट हाउस होम स्टेज एंड मैरिज एंड रिसेप्शंस जहाँ पे किए जा रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो ये वाला एक बार जस्ट रीड कर लेना, ये थोड़ा सा एलोकेट करने के बारे में बोला हुआ है, तो आई विल नॉट डिस्कस दिस. Okay, I'll just take one example. Mr. X located in Delhi engaged the services of Mr. Y, an architect in Delhi. Okay, ठीक है, तो दोनों ही दिल्ली के हैं, both X and Y are from Delhi, और जो architect services के लिए वो उसे engage करता है. तो Mr. X request him to make design of residential complex to be constructed in Cochin, Kerala. So what will be the place of supply in this case? So two person है, the supplier of the service and the recipient of the services are from Delhi, but the recipient want कि वो अपनी services केरला में provide करे, केरला कोचीन में provide करे. So yes, exactly. So the place of supply of services will be that place where immovable property is situated. ठीक है, तो very nice. अभी क्या होता है कि this is my personal observation which I have seen. यूजिंग दिस क्लॉज आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं अभी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, बट जब हम एग्जाम में होते हैं तब हमें ये क्लॉजेस ना क्लिक नहीं करते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर मतलब इनको इन क्लॉजेस को, इन सेक्शंस को याद करने के लिए दिस इज माय ट्रिक विच आई यूजली यूज. मैं क्या करती हूँ कि एक पर्टिकुलर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं हमेशा याद रखती हूँ. तो जैसे अभी ये वाला केस उन्होंने बात किया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मुझे समझ में आता है कि वेयर इट इज सिचुएटेड, तो कुछ ऐसी लाइंस आप याद कर लीजिए या कुछ ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल्स बना लीजिए, तो जब भी ऐसा कोई क्लॉज आएगा, ऐसा सेक्शन आएगा, तो यू मे क्लिक इट सून, है ना, तो इट विल हेल्प यू. ओके, सो दैट वाज ओके. नाउ प्लेस ऑफ सर्विसेज, नाउ सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू रेस्टोरेंट्स, catering services, personal grooming, fitness services, beauty treatment services and healthcare services including cosmetic and plastic surgery. तो इन केसेस के अंदर आपका what will be your place of supply of services. ठीक है, so X says कि shall be the location where the services are actually performed. जहां पे भी सर्विसेज परफॉर्म्ड की जाएंगी, that place we will consider as a place of supply of services. This is clear?
I just want to ask you, for example, if I am providing fitness services, है ना, at my gym in Punjab, so what will be the place of supply of services? Gym Punjab, right? Great, great, great. Now I'm just थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ क्वेश्चन के अंदर. You are from Delhi and you approach me and you say कि ma'am please provide me your fitness services. So I said okay, you come to my place. You said no ma'am, I can't come. I have here group of person and you can just give me your services for ma'am, isn't it like this previous clause? No, 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 no. If there is difference, I just tell you, Geeta. So you ask me ki ma'am, we have group of friends, we have a group, so please do come and to my place. It's in Delhi, right? So now tell me, what will be the place of supply of services? Delhi, right? So गीता, आपका कंफ्यूजन जो था अब मैं क्लियर करती हूँ. देखो, पुराने वाला जो पीछा जो क्लॉज अपना सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 था, दैट वाज टॉकिंग अबाउट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? वही मैं आपको बता रही थी कि आपको कुछ टर्म्स ना याद करनी पड़ेंगी सो दैट आपको ये क्लॉजेस हमेशा याद रहेंगे, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. तो वहां पे बात करते हैं कि इफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी पे प्रोवाइड की जाती है, उस केस के अंदर योर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट प्लेस वेयर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, आई मीन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज सेम इन बोथ केसेस. नो गीता, प्लेस ऑफ सप्लाईज इज नॉट सेम इन बोथ केसेस. उसी का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर मेरा जो सेंटर है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ रेस्टोरेंट, ठीक है, तो वो मेरा यहाँ पंजाब में सिचुएटेड है, या आई से कि जो मेरी फिटनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, मैं पंजाब में मेरा ऑफिस है, मैं वहां से करती हूँ. आप यहाँ पे आते हो दिल्ली से, तो भी मैं आपको बोलूंगी कि दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और मैं CGST SGST काट के आपको बिल दे दूंगी. ठीक है, तो दिस इज माई पंजाब इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. बट आप मुझे कहते हैं कि मैम आप मेरे को दिल्ली में आके ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज दे दीजिए, तो इस केस के अंदर जहां मैं आके सर्विसेज परफॉर्म कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज अगर मैं आपको दिल्ली में दे रही हूँ, तो दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड आई विल चार्ज IGST ऑन दिस ट्रांजेक्शन. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस. स्टिल यू हैव डाउट गीता? Yes and no? Okay, right. So abhi just we will take a fatafat se ek example we will take. Okay, I think so. I have just explained this illustration, है ना? So okay, we will just let it go. Just proceed further. So section 12 subsection 5 of IGST it says कि place of supply of services in relation to training and performance appraisals में आपका क्या कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, तो ट्रेनिंग अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, या आप परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के लिए जा रहे हैं, उस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि जो जजेस नहीं होते, रियलिटी शोज के जजेस होते हैं, तो उन केस के रिगार्डिंग कहते हैं कि व्हाट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं. और लाइक जैसे कि होते हैं कि जो कंपनी अपनी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, जैसे अभी GST न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कुछ कॉर्पोरेट्स ने ट्रेनर को बुला के अपनी कंपनी में ट्रेनिंग कराई थी, और कुछ कंपनीज ने अप्रोच किया था कि अपने एम्प्लॉयज को भेजा उन्होंने ट्रेनर के पास. ठीक है, दोनों केसेस वी हैव. तो इन केस के अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें सेक्शन क्लियर होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, देन हमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पता लग जाएगा. सो कहता है कि सर्विसेज अगर आपको फाइंड आउट करनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको फाइंड करना है किस सर्विसेज के लिए, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन. ओके, सो वी हैव मयंक हियर वी हैव टू टाइप ऑफ आंसर्स. ठीक है, तो अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इन रिलेशन टू ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के लिए, सो वी हैव वन इज रजिस्टर्ड पर्सन एंड सेकंड वन इज अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो कहते हैं कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज वी विल कंसीडर. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आई एम द GST ट्रेनर, आई एम रजिस्टर्ड इन पंजाब एंड यू आर द कंपनी एंड यू आर रजिस्टर्ड इन गुड़गांव हरियाणा. ठीक है, एंड यू कॉल मी एंड सेज कि मैम वी वांट टू ट्रेन आवर एम्प्लॉइज, है ना, हमें आपकी GST कंसल्टेशन की जरूरत है. तो मैं कहती हूँ ठीक है, आई विल कम, वी जस्ट फिक्स द डेट, और मैं आपके गुड़गांव हरियाणा ऑफिस आ जाती हूँ. तो ये रुक्षिता, वेरी नाइस. तो हमारा जो होगा
प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट प्लेस, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, तो चाहे मैं अनरजिस्टर्ड, इट हार्डली मैटर्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन इज रजिस्टर्ड इन हरियाणा गुड़गांव, सो दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ लोकेशन, ठीक है। नाउ इफ दे टॉक की इफ सर्विसेज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड की जाती हैं टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, सो व्हाट विल बी योर आंसर? तो कहते हैं लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, राइट। जैसे कि ये वाला क्लियर हो गया। अभी मैं सबसे पहले अगेन आई एम गोइंग हियर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। ओके, इसमें मैं एक एग्जांपल ट्विस्ट करती हूँ, देन यू हैव टू रिप्लाई मी। तो फर्स्ट वाज वेरी बेसिक सा था कि आई एम फ्रॉम पंजाब, यू आर फ्रॉम हरियाणा गुड़गांव एंड आई डिलीवर माय सर्विसेज एट हरियाणा गुड़गांव, सो यू सेड कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हरियाणा गुड़गांव, ठीक है। नाउ मैम इन केस रजिस्टर्ड इन हरियाणा बट yes, अभी आई एम जस्ट टेकिंग दिस पॉइंट ऑल्सो। तो अभी किशन केशरी से कि इन केस रजिस्टर्ड इन हरियाणा बट प्रोवाइडिंग but training provided in branch office in झारखंड, then where will be the place of supply, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहते हैं कि जो झारखंड वाला पर्सन है that must be registered, है ना। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो हम झारखंड प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इफ झारखंड इज नॉट रजिस्टर्ड, तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो कहता है यहाँ पे आपके पास है कि लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, तो आपको दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो मैं इसको अपने तरीके से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी मैं बात करती हूँ प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट्स बेटर कि मैं अपने एग्जांपल देने से भी बेटर है, आपकी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है दिस इन्फोसिस जीएसटी वाला, ठीक है, दैट आई विल पिक। जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, आई विल टेक अ ब्रेक। So question says कि Mr. A located at Kolkata provides training at Kolkata to employees of, okay, so there are supplier of services and the recipient of services and both are from Kolkata, ठीक है। So which is Mr. A located at Kolkata provides training at Kolkata to employees of, okay, ठीक है। तो कहता है कि there is one supplier of services and वो कोलकाता से है और रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज जो है वो मुंबई से है, मुंबई में रजिस्टर्ड है, ठीक है। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अच्छा, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि जो मुंबई वाला जो पर्सन है इन्फोसिस है, उसने अपने एम्प्लॉइज कहाँ भेजे हैं ट्रेनिंग के लिए? कोलकाता भेजे हैं। तो कहते हैं व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज वी विल कंसीडर, चाहे आप मेरे प्लेस पे आके क्यों ना सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है। तो इस केस के अंदर कहता है रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं तो वी विल कंसीडर द लोकेशन ऑफ दैट पर्सन एंड द इन्फोसिस लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन मुंबई, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, ठीक है। सेकेंड केस जो है दैट टॉक अबाउट इन्फोसिस इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। तो अब क्या होता है, एम्प्लॉइज जो है वो कोलकाता आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, सो वी विल कंसीडर प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता एंड सीजीएसटी एसजीएसटी नीड टू बी चार्ज। इन मुंबई के केस के अंदर वी विल चार्ज आईजीएसटी, ठीक है। तो ये वाले ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे अभी क्वेश्चन में ही पूछा था तो उनका भी ऐसा सही एग्जांपल था, तो यू हैव टू कंसीडर सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। अभी क्यों न्यू क्वेश्चन भी आया है क्या? Who said, okay ma'am, in case of cost accountant, if we provide services to a company having multiple branch office, some are registered, some are unregistered, then what to do in such cases? इसका जो है, या तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि मैं अभी भी आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, या मैं आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसका रिप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि ये वाला जो आपका आपने रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग बात की है वो हमारा सेक्शन 22 के अंदर फॉल कर जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो आई विल से कि देखो यहाँ पे क्या होता है
इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड आपका कि अगर आपको जिस भी स्टेट से, अभी मैंने शायद बीच में बोला भी था ये, कि from where you want to make taxable supplies, in that state you have to take registration. ठीक है, तो अगर you are a company in गुड़गांव हरियाणा, है ना, and you have multiple branches in India, like दिल्ली में भी, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, and इन जगहों पे, हिमाचल में आती है, तो जिन भी स्टेट्स के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना, तो हम उसे डिस्टिंक्ट पर्सन के जैसे कंसिडर करते हैं, डिफरेंट एंटिटी के जैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। नाउ अब आप यहाँ पे कहते हैं कि आप पंचकुला ये हरियाणा से हैं और आपने ये जो ट्रेनिंग एंड अप्रेजल वाली सर्विसेज ली हैं, आपने अपने गुड़गांव वाले एक सप्लायर ऑफ सर्विसेज को बोला कि भाई मेरे को अपनी ट्रेनिंग करवानी है, और वो जो है वो पंजाब में है, ठीक है, उनकी जाके करवानी है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये क्लॉज यही आपको बोल रहा है कि अभी आप यू आर द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, राइट, यू आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल, you are registered in GST and you are asking for the services for your पंजाब ऑफिस। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें इसे मैटर नहीं करता कि हमें सर्विसेज कहाँ देनी है, हमें मैटर करता है कि जो रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज है उसकी लोकेशन हमें कंसिडर कर लेनी है। ठीक है, तो यू आर द रेसिपिएंट, यू आर द रजिस्टर्ड पर्सन, तो हम आपकी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, बट इफ यू आर अनरजिस्टर्ड पर्सन तो हम लोकेशन जो है कौन सी लोकेशन बोली थी उसने, सप्लायर की लोकेशन, जहां पे भी वो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस हो रही है वो प्लेस हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसमें आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगी, बाकी आप एक काम करेंगे, सिर्फ इसके लिए रजिस्ट्रेशन तक का वेट करें अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है, राइट। क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में यूजुअली पहले नहीं पढ़ाती हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं पहले रजिस्ट्रेशंस पढ़ा दूं, देन उसके बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाऊं। मैम कैन वी रेज सिंगल इनवॉइस एंड देन बाय यूजिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर दे कैन डिस्ट्रीब्यूट। हाँ जी, ये वाला केस भी इसके अंदर पॉसिबल है कि आप एक फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो जो आपका गुड़गांव हरियाणा वाला ऑफिस है, आप इसे आईएसडी के जैसे रजिस्टर करवाइए और यहाँ पे आप पूरा 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपीज का बिल रेज करवाइए। ठीक है, देन ये वाला जो बिल है आप इसका जो इनपुट है और जो अमाउंट है एक्सपेंसेस वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप टू योर ब्रांचेस, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आईएसडी का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली ये कि वो सारा आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैठता है, जो जिसको उसमें जितनी भी सर्विसेज अवेल की होती है सेंट्रलाइज, है ना, राइट। दिस इज डन। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड by way of admission to, okay, so section 12 subsection 6 and 7 में दोनों में there is लिटिल डिफरेंस, लेकिन जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अभी जिस पहले मैं दोनों सेक्शन साथ साथ लूंगी, इसमें याद नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज देखेंगे एक बार, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू। ठीक है, कौन कौन सी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज में एडमिशन ले रहे हैं, आप आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस देखने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आप एडमिशन ले रहे हैं, मीन्स टिकट बाय कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स को देखने के लिए जा रहे हैं, साइंटिफिक एग्जीबिशन या किसी इस चीज के लिए जा रहे हैं, एजुकेशनल इवेंट्स के लिए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क्स के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इन चीजों में जाने के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है या कोई फुटबॉल मैच हो रहा है, ठीक है, एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली, और जो क्रिकेट एंड फुटबॉल मैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल आई जस्ट से कि वो कहीं हिमाचल या कहीं मोहाली में हो रहा है, मोहाली पंजाब में हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे इवेंट हो रहा है, जहां पे क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच हो रहा है, दैट प्लेस विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इज इट क्लियर? देयर इज नो डाउट, है ना, सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 के अंदर कोई डाउट नहीं है। नाउ यहाँ पे हमें डाउट होगा सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, सपोर्टिंग साइंटिफिक, एजुकेशनल इवेंट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे नेचर ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 में भी सेम था, 7 में भी सेम है। ऊपर जो बात की गई थी वो बात की गई थी एडमिशंस को लेकर की। ठीक है, जब आप टिकट बाय करते होते हैं, यहाँ पे उसने इस तरीके की बात नहीं की है, यहाँ पे बाय वे ऑफ एडमिशन नहीं बात की गई है। ठीक है, तो ये एक चीज थी।
तो नाउ यहाँ पे हम देखते हैं, कहता है कि अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन सच अ वे, तो यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो हियर रजिस्टर पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, और अगर इट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया सो प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये थर्ड वाला पहले आपको क्लियर कर देती हूँ, ऊपर टू वाले जो है वो दैट इज सिंपल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि मुझे एक कोई कल्चर प्रोग्राम करवाना है, ठीक है, तो आई एम फ्रॉम पंजाब, यू आर ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, एंड आई से कि बट ये जो कल्चर प्रोग्राम है दैट आई वांट इन सिंगापुर। ठीक है, तो लोकेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द लोकेशन इन दिस केस, आई एम फ्रॉम पंजाब, यू आर फ्रॉम दिल्ली, and I ask you, you are the supplier of services, and I ask you कि मुझे कल्चर प्रोग्राम कराना है, बट दैट इवेंट विल बी हेल्ड इन सिंगापुर, तो व्हाट विल बी द, ओके सिंगापुर में है। ठीक है, तो अभी यू आर रिप्लाइंग मी पंजाब, so your answer is wrong, you have not read the third point over here. So the point is, if the event is held outside India, the place of supply shall be the location of the recipient. Okay, ठीक है, right, sorry. तो जो आपकी लोकेशन है वो आपकी पंजाब ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि देखो सिंगापुर हमारा जो है दैट इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो वहां पे हम अपना जीएसटी वाला जो लॉ है वो नहीं चला सकते हैं, उसके लिए कहते हैं कि जो भी रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है उसी को हम कंसिडर कर लेंगे, उसकी लोकेशन वी विल कंसिडर, एंड पंजाब विल बी द योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सो यू आर राइट गाइस, सॉरी। अनरजिस्टर्ड पर्सन इज ओके, लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। तो अगर मैं आपसे कोई वही कल्चर प्रोग्राम करवा रही हूँ एंड आई एम अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड आई से कि मेरे को पंजाब में एक कल्चर प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, तो आप आते हैं, करवाते हैं, राइट। तो इस केस के अंदर पंजाब विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड इफ यू आर प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, सो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, तो जहां पे भी वो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, राइट। तो दिस इज योर सेक्शन 12 सब सेक्शन 7। तो यहाँ पे जो बात की गई है दैट यू हैव टू रिमेम्बर, नेचर ऑफ सर्विसेज सेम है ऊपर सेक्शन सब सेक्शन 6 एंड 7 में, बट यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कराने के बारे में बात करते हैं एंड सेक्शन 6 के अंदर आप एडमिशन लेके बात करते हैं। ठीक है, okay, like there is one more example. Mr. D of Delhi, being an event organizer, hosted an exhibition at Mumbai. Okay, तो दिल्ली का पर्सन है, मुंबई में एग्जीबिशन होस्ट करता है टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट ऑफ एग्जिबिटर्स नेमली चेन्नई के लिए। ठीक है, इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, दिस इज नाइस क्वेश्चन, बट मैं देख आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा, आई एम श्योर। Okay, now just read the question and tell me. Place of recipient. Okay. Nidhi said Chennai. Okay. Any new answer? Okay, everyone will say Chennai. ठीक है, सो योर आंसर इज चेन्नई, क्योंकि जो लोकेशन है रिसिपिएंट की, सर्विस रिसिपिएंट की, दैट वी नीड टू कंसीडर। ठीक है, ओके। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए भी आई हैव मेंशन, सो आई विल डू वन थिंग कि आई विल शेयर माय नोट्स विद यू। तो ये आर वेरी स्पेसिफिक केसेस हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया इन केस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग। देखो, जहां पे भी इवेंट हो रहा है वो इवेंट वी विल कंसीडर। ठीक है, तो ये वाला भी आपको सकता है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग एडमिशन केस के अंदर। हाँ जी, ये किसने पूछा है? एक मिनट, ये है गीता। गीता, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल कि जैसे कि आपका क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है, तो उसकी आपको फिजिकल टिकट्स भी मिलती है स्टेडियम में जाके, बट यू प्रेफर कि नहीं, यू डोंट वांट टू गो एंड बाय द टिकट जो आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है ना, दिल्ली में पड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लेते हैं, एंड यू आर फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल जयपुर,
तो इवेंट कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो दिल्ली विल बी द प्लेस, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन ही बुकिंग क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। तो जहां पे भी इवेंट हो रहा है, दे आर वेरी मच क्लियर कि जहां पे इवेंट हो रहा है दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर, राइट। सो इफ सी इज नॉट रजिस्टर्ड देन इट इज मुंबई, ओके, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा, है ना, वेयर प्लेस वेयर इट इज हेल्ड, हाँ जी, ठीक है। तो एज पर लॉ जो है वो हमें हो जाएगा, राइट। तो गीता योर आंसर इज क्लियर। यस, ओके, ग्रेट। नाउ सेक्शन 12 सबसेक्शन 8, तो यहाँ पे बात करता है नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, किस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल एंड कुरियर, ठीक है। तो अगर इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे कहता है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, सो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज हो जाएगा, एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस के अंदर location at which such goods are handed over for their transportation। इसके अंदर एक मिनट, बिफोर जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस, उन्होंने कुछ इसमें अमेंडमेंट भी किया है। तो न्यू प्रोविजन दे हैव इंसर्टेड सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 के अंदर, which provide that if the transportation of goods is to a place outside India, a place of supply shall be the place of destination of such goods। एक मिनट, which provide that if transportation of goods is to a place outside India, the place of supply shall be the place of destination of such goods। तो मतलब अगर जो ओके, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर जो गुड्स हैं वो आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड किए जाएंगे तो डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स वी विल कंसीडर प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके। तो वी विल जस्ट टेक एन एग्जांपल, है ना, इसको हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं, जस्ट यू गो विद द क्लॉज। तो यहाँ पे हो गया कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को की गई है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, ओके, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई है तो जहां पे भी गुड्स हैंड ओवर किए गए हैं, ठीक है। तो नाउ वी जस्ट टेक एन एग्जांपल डायरेक्टली, सो वी विल वाइंड अप सो सून। ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अ ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ओके, सो द जो ट्रांसपोर्टर है ही इज रजिस्टर्ड, located in Vijayawada, Andhra Pradesh, okay. So Messrs C Limited of Chennai, registered under GST, okay, received services from Messr S Transport Agency for transport of goods from its warehouse in Vijayawada to Guntur. Messr Transport Agency delivered goods at Guntur. So find the place of supply of services and GST, whether your answer will be different if C Limited of Chennai is not being a registered person under GST. We will just go with the question. Just 2 minutes. अभी चल रहे हैं, अब रेस्ट करो। We are going. हाँ जी, वो रीड किया क्वेश्चन। So we have to check registered person wise and unregistered person wise, ठीक है। So if person is registered person, so जो location है वो recipient of services consider कर ली जाएगी, ठीक है। So जो कहाँ पे हो रही है सर्विसेज, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज चेन्नई, ठीक है। तो जो पर्सन है जो रजिस्टर्ड है वो चेन्नई में रजिस्टर्ड है, so that लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट चेन्नई में रजिस्टर्ड है, तो चेन्नई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, तो जो गुड्स जहां पे भी हैंड ओवर किए गए हैं तो दैट प्लेस वी विल कंसिडर। तो इन लास्ट दे हैव मेंशन कि फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस इन विजयवाड़ा टू गुंटूर, सो जो गुड्स हैं आपको डिलीवर करने हैं गुंटूर में, तो योर प्लेस विल बी विजयवाड़ा, ठीक है। सो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसमें याद करना है, ओके। बहुत बिग सा क्वेश्चन आया है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तब तक हम सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 एक बार गो थ्रू करते हैं, मैं वो क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ एक बार, जस्ट गो थ्रू विद दिस, है ना। सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 says place of supply of services in case of passenger transportation services, ठीक है।
So you have to identify the place of supply of services in case of passenger transport. जब आप passenger transport के सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व है. So this is very interesting और आपको ये याद भी रहेगा. Like you have to consider like एक one is for registered person and one another is for unregistered person. ठीक है, तो इस तरीके से आपको segregate करके चलना है. Like passenger transport services जो है like जैसे कि रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेल, रोड रेल, वेसल, बोट, साइकिल्स, रिक्शा, ये सब इन्होंने नेचर ऑफ सर्विसेज बताए हैं ना. तो यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो जैसे कि आई टेल यू, इसमें एम्बार्क वाला है, एक जस्ट लेट मी सी, दिस इज बिलोंग्स टू एम्बार्क. ओके, तो दैट बिलोंग्स टू एम्बार्क वाले. यस, हाँ जी. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. या जस्ट यू हैव टू टेल मी द लोकेशन, यू हैव टू टेल मी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस. तो जस्ट एक बार ये क्लॉज जो है, सेक्शन जो है, एक बार आप रीड कर लीजिए. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन इज दिस कि आई एम अ कंपनी एंड आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड जहाँ मैंने जीएसटी लिया है दैट इज इन गुड़गांव, हरियाणा. ठीक है. मैं एक ट्रेवल एजेंसी को अप्रोच करती हूँ और आई आस्क कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, दे आर इन दिल्ली, वो सब दिल्ली में रहते हैं, और जो एजेंसी को मैंने अप्रोच किया है दैट इज ऑल्सो इन दिल्ली. ठीक है, उसका दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है, मेरा गुड़गांव हरियाणा में रजिस्ट्रेशन है. एंड आई आस्क फ्रॉम द एजेंसी कि यू हैव टू गिव मी अ वन बस और समथिंग लाइक दिस, कि मुझे जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनको मुझे फॉर एग्जाम्पल हिमाचल लेके जाना है ना, हिमाचल घुमाना है. तो वो कहते हैं ठीक है. तो एजेंसी जो ड्राइवर है दैट पर्सन सेज कि मुझे बस कहाँ लेके आनी है. तो मैं उन्हें कहती हूँ कि दिल्ली में ही मेरे सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, वो वहीं से एम्बार्क करेंगे, तो आपको वहीं से उन्हें पिक कर लेना है डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन से. So in this case, what will be your answer regarding place of supply of services? Okay, so Mayank said that will be Gurgaon. ठीक है, तो yes, that will be Gurugram. हरियाणा कंसिडर किया जाएगा. तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन है दैट वी हैव टू कंसिडर. तो इसका एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हैं. इन अ सेम मैनर कहता है प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, तो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट अनरजिस्टर्ड पर्सन. नाउ आई गिव द सेम एग्जांपल कि मेरी एक फर्म है या एक कंपनी है विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड आई अप्रोच टू अ ट्रेवलिंग एजेंसी एंड आई आस्क कि आप मेरे एम्प्लॉयज को पिक कर लेना. ठीक है, तो वो सब दिल्ली से हैं. अब आप मुझे बताइएगा इस केस के अंदर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. एग्जैक्ट. सो योर आंसर विल बी दिल्ली. तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो जहां से भी वो एम्बार्क करेगा अपनी जर्नी के लिए, दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है. तो नाउ दे हैव यूज्ड वन टर्म कॉन्टिन्यूअस जर्नी. कॉन्टिन्यूअस जर्नी क्या होती है? जिसमें कोई ब्रेक ना हो, जिसके अंदर यू डोंट हैव दैट मोड. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गिव यू, अगर मेरे को दिल्ली से दुबई जाना है और जो मेरी फ्लाइट है, नहीं, दिल्ली से मुझे एग्जांपल लंदन जाना है और जो मेरी फ्लाइट है वो दुबई हॉल्ट पे रुकती है 4 आवर्स के लिए. ठीक है, तो दिस विल वी विल कंसिडर एज अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी. फॉल्टी तो है. ठीक है, बट नाउ इफ आई डू कि मैं वहां से उस जर्नी को छोड़ के
मैं कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है जहाँ पे मैं कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर लेती हूँ, तो वो मेरी जर्नी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस जर्नी नहीं बोलते हैं। इसकी रिगार्डिंग एक और पॉइंट है, if in this example people embark from different location, then what will be the place of supply? हाँ जी, that person के अलग अलग कंसिडर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एम्प्लॉय वाला एग्जांपल दिया कि एक पर्सन दिल्ली से एम्बार्क कर रहा है, एक पर्सन गुड़गांव से एम्बार्क कर रहा है, करनाल से एम्बार्क कर रहा है, ठीक है। तो उस केस के अंदर उनका प्लेस वही कंसिडर किया जाएगा, दिल्ली, करनाल एंड गुड़गांव, ठीक है। तो जो बिल कटेगा वो उनका इस लोकेशन के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो दुबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ यू डिसकंटिन्यू। हाँ जी, और जो अगर ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके रिगार्डिंग एक और चीज आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू। यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट में से ना। एक तो ये कॉन्टिन्यूअस जर्नी के रिगार्डिंग बनता है, तो प्लीज जस्ट गो थ्रू विद द डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ IGST एक्ट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि द रिटर्न जर्नी शेल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी। मींस अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए अपनी टिकट्स बुक कराती हूँ ट्रेन की या एयर की, बाय एयर, और मैं आज सेम डेट में ही अपनी रिटर्न की भी टिकट्स बुक करवा रही हूँ, ठीक है, चाहे सेम डे की कर रही हूँ चाहे अलग डे की कर रही हूँ, तो दिस विल बी कंसिडर एज अ सेपरेट जर्नी। रिटर्न जर्नी इज डिफरेंट और जो मैं जा रही हूँ दैट जर्नी इज कंसिडर एज डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ अच्छा, ये वाला पॉइंट देखेंगे। अब हम बात कर रहे थे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 की, जहां पे हमें डिफॉल्ट रूल लगेगा। तो ये वाला जो क्लॉज है वहां पे सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा कौन सा केस है जहां पे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो कहते हैं वेयर राइट टू पैसेज इज गिवन for future use and point of embarkation is not known at the time of issue of such rights, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ से एम्बार्क करोगे जर्नी के लिए। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, इन दैट केस आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका कोई एग्जांपल है तो आई विल चेक, अदरवाइज हम आपकी बुक में एक बार चेक कर लेंगे। ओके इसका नहीं है, एक बार अपनी बुक में आप चेक कर लीजिएगा इसका, ठीक है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 का डेफिनेटली देयर इज। Then section 12 subsection 10 of IGST Act says place of supply of services on board or conveyance। तो अगर जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है ऑन बोर्ड पे, तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा। लाइक अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है ऑन वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन एंड मोटर व्हीकल पे, तो शेल बी द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको, I'll just take an example, it's better. Place on wheels a train running from Jaipur to Kanyakumari, okay, provides on board entertainment services to its passenger, ठीक है। तो यहाँ पे है कि प्लेस ऑन व्हील एक है ट्रेन, वो क्या करती है आपको रनिंग विच इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कन्याकुमारी, ओके। सो आई नो द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग इज जयपुर और जो एंड होगी दैट इज कन्याकुमारी। ही प्रोवाइड्स ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट सर्विस, तो ड्यूरिंग द जर्नी वो आपको एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है टू इट्स पैसेंजर। देन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट सर्विसेज शेल बी, आपका क्या होगा, दैट इज जयपुर, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो दैट इज ओके। जैसे हमने गुड्स के केसेस में देखा था कि जहां से गुड्स टेकन ऑन बोर्ड किए जा रहे थे, ठीक है, तो दैट प्लेस वाज आवर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स था। तो इन अ सेम मैनर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपको ऑन बोर्ड के ऊपर वो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना, जैसे आप जयपुर से कन्याकुमारी ट्रेवल कर रहे हैं और ड्यूरिंग दी जर्नी दे आर प्रोवाइडिंग यू सम एंटरटेनमेंट सर्विस या ऐसी कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करना है उसका जहां से आपका फर्स्ट शेड्यूल था, ठीक है। तो दैट प्लेस यू हैव टू कंसिडर। नेक्स्ट इज, I think so this is, that was 10, okay। So 11 वाला is very very big, है ना, but this is very simple and easy. This belongs to telecommunication services। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर ये है
कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैंडलाइन लगा हुआ है आपके घर पे, लैंडलाइन है ना, याद है ना आपको, या आप भूल गए हैं मोबाइल के चक्कर में? तो वो पूरा लैंड वाला जो सिस्टम होता था, अगर आपके घर पे लैंडलाइन लगा हुआ है एंड यू आर गेटिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फ्रॉम द दैट टेलीकॉम डिपार्टमेंट, तो इन सच केस व्हाट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? तो कहते हैं कि जहाँ पे भी आपका ऐसा लैंड कनेक्शन इंस्टॉल्ड है, जहाँ पे आपकी लैंडलाइन इंस्टॉल्ड है, that place we will consider as a supply of services. ठीक है, तो your home will be considered as a supply of services. In a such a manner they have tell कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और अगर आप प्रीपेड कनेक्शन ले रखा है या आपने पोस्टपेड कनेक्शन ले रखा है, तो what will be your place of supply of services? In case of postpaid connection, है ना, if you have mobile and you are using postpaid connection, then what will be the place of supply of services? Anyone can tell? यस एग्जैक्टली, तो हमें क्या करना है, जो हमारा बिलिंग एड्रेस है जो आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए दिया होगा, तो दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है तो नेक्स्ट उसके बाद आता है, ये वाला इजी था, जो आपका फिक्स टेलीकम्युनिकेशन आप लाइन लगवाते हैं या आप ये डिश एंटीना लगाते हैं, तो उसके अंदर था कि जहाँ पे भी ये गुड्स ये जो सर्विसेज दिए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं, दैट प्लेस वी विल कंसीडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पोस्टपेड कनेक्शन के अंदर भी इट वाज इजी, बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट मोबाइल कनेक्शन एंड विच इज ऑन प्रीपेड बेसिस पे है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा? प्रीपेड कनेक्शन के अंदर जिसमें आप वाउचर रिचार्ज कराते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू करवाते हैं, या आप शॉप पे जाके शॉपकीपर को बोलते हैं कि मुझे अपना वाउचर जो है वो वाउचर दे दीजिए, उस केस के अंदर आपका क्या कंसिडर किया जाएगा? Okay, so okay, address of such shop consider करेंगे. Okay, I just want to know कि like अभी तो हम hardly visit करते हैं शॉप के ऊपर, है ना? We used to prefer कि हमने ऑनलाइन ही रिचार्ज कर दिया. उस केस के अंदर what will be your answer? बिलिंग एड्रेस, बट आई रिमेम्बर कि बिलिंग एड्रेस हम उस टाइम पे कब डालते हैं आई डोंट रिमेम्बर. ओके तो जो पहले किस चीज का एक मिनट आंसर था उसमें लेट मी सी. हाँ जी, तो पहले था एड ऑफ सच शॉप, एड्रेस ऑफ सच शॉप, है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग इफ आई एम द वोडा, जैसे कि आई टेक एग्जांपल ऑफ वोडाफोन, ठीक है, तो जो वोडाफोन कंपनी है उसने अपना एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सेलर है, उसको असाइन कर रखा होगा एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, ठीक है, तो अगर मैं वहां से जाके बाय कर रही हूँ तो दैट प्लेस विल बी कंसिडर, जो आपने बोला कि एड्रेस ऑफ अ शॉप है ना, तो अगर जो वाउचर है सेलिंग एजेंट के थ्रू सोल्ड किया जा रहा है, तो हम उस सेलिंग एजेंट का जो एड्रेस है दैट वी विल कंसिडर एज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन दिस केस. ठीक है, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं कर रही हूँ थ्रू ऑनलाइन मोड, है ना, तो उस केस के अंदर आपका क्या कंसिडर कर लिया जाएगा? बी द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड वेयर सच एड्रेस इज नॉट अवेलेबल. तो ये इसका आंसर नहीं है, तो इसके लिए दैट वाज समथिंग डिफरेंट. हाँ, ये रहा, by any person to the final subscriber be the location where such prepayment is received or such vouchers are sold. ठीक है, तो ऑनलाइन मोड के अंदर ये भी उसका आंसर नहीं है. आई थिंक सो आई हैव मिस्ड इट, है ना, तो एक बार अपनी बुक में चेक कर लेना. तो यहाँ पे जो उसका एड्रेस रहेगा अगर मैं ऑनलाइन के थ्रू कर रही हूँ, तो एग्जैक्टली जो मेरा बिलिंग एड्रेस है, या अगर मैं बैंक अकाउंट के थ्रू कर रही हूँ, तो दैट एड्रेस जो है वो मेरा कंसिडर कर लिया जाता है फॉर टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, बाकी इनके सिवा अगर कोई और केसेस बनता है, लाइक आपका पॉइंट 1 2 3 के अंदर जो फॉल नहीं किए हैं, तो उनके लिए एनी अदर केसेस है, जस्ट गो थ्रू विद दैट, है ना. तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे दे रहा है ये चीज, ठीक है.
So if such prepaid service is availed or the recharge is made through internet or other electronic mode of payment, the location of the recipient of services on the record of the supplier of services shall be the place of supply of such services. ठीक है, तो ये वाला एक बार आप just go through कर लेना. तो this is okay. ये है एक आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकरिंग सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 सबसेक्शन 12 डील करता है. तो यहाँ पे अगर आप इन टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो आपकी लोकेशन है दैट विल बी कंसिडर कौन सी वाली लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज इन योर रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, वो कंसिडर कर लेंगे. Otherwise, location of supplier of services you can consider it. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेना. दिस इज सिंपल एंड इजी, तो मैं इसको भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको. देन आपका है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज. ठीक है, इंश्योरेंस सर्विसेज को भी एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लो. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि अगर इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज हम कंसिडर कर लेंगे. और अगर अदर देन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज यू हैव टू कंसीडर. देन है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज. एडवर्टीजमेंट क्या है बेसिकली, अगर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड लोकल अथॉरिटी, इसका एक पूरा इन्होंने सर्कुलर या कुछ ऑर्डर भी निकाला हुआ है. ठीक है, तो जस्ट यू कैन गो थ्रू विद दैट, बट आई थिंक सो दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू. तो इसका बेसिकली जो इन शॉर्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग सेक्शन. यहाँ पे उन्होंने बताया कि एडवर्टीजमेंट किस तरीके से है. फॉर एग्जांपल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एडवर्टीजमेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, है ना. तो अगर उन्होंने उसके फॉर एग्जांपल 100 बोर्ड्स बनवाए हैं, है ना, और वो साइन बोर्ड्स वो फॉर एग्जांपल अपना 10 स्टेट्स के अंदर लगा रहे हैं, राइट. तो वो कहते हैं कि 10 स्टेट्स के अंदर वो अगर 50 बोर्ड्स लगा रहे हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे यू हैव टू कंसीडर. तो वो स्टेट्स हम कंसीडर कर लेंगे और दैट विल बी आवर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट. तो इसका जो शॉर्ट था वो यही था, बाकी इन्होंने बहुत कुछ इसमें बोला हुआ है. तो जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आई हैव टुक इट ओवर हियर. The government has hired 200 hoardings in Lakshadweep and 175 hoardings in Chennai for providing advertisement of it. Just go through with the illustration एक बार. अगर आपने ये इलिस्ट्रेशन देखा तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बेसिकली हम कंसिडर कर लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो ये था आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन इंडिया, जहाँ पे इन्होंने 13 से 14 आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बताए हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज. So now your section 13 place of supply of services is outside India. तो इसके अंदर जो थोड़े से डिफरेंट प्रोविजंस हैं वो आई विल पिक, है ना. बाकी जो है एक बार आप खुद से गो थ्रू करना. तो यहाँ पे जो है दैट आई विल पिक सेक्शन 13 सबसेक्शन 1. तो इसके अंदर भी देयर इज वन डिफॉल्ट रूल. ठीक है, डिफॉल्ट रूल ये है कि अगर आप जो नेक्स्ट हम प्रोविजन रीड करेंगे उसमें आप एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं प्लेस आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देन यू हैव टू कंसीडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. दैट इज आपका डिफॉल्ट रूल, जहाँ पे डिफॉल्ट रूल कहता है कि शेल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज आपको कंसीडर कर लेना है, राइट. सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 3A, जहाँ पे बात की गई है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज. नाउ यहाँ पे वो सिंपल सी बात कर रहा है कि इफ यू वांट टू प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, तो दैट गुड्स मस्ट बी विद यू. तो आपके पास जो सप्लायर ऑफ द सर्विसेज है उसके पास वो गुड्स होने चाहिए, फिजिकली अवेलेबल होने चाहिए. ठीक है, so in that case what will be the place of supply of services.
तो यहाँ पे बोलते हैं कि सर्विसेज सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज टू द सप्लायर ऑफ सर्विसेज shall be the location where the services are actually performed. जैसे कि आई गिव यू एग्जांपल, मैं आपको विद इन इंडिया का एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा टीवी नहीं चल रहा है, ठीक है, तो अब मुझे इसमें जो रिपेयर मैन है उसकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि या तो मेरे को टीवी उसकी शॉप तक लेके जाना पड़ेगा या उसको मेरे प्लेस तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जहाँ लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, तो अगर वो सर्विसेज मुझे मेरे घर आके प्रोवाइड कर रहा है तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और इफ आई एम टेकिंग माय टीवी टू हिज शॉप, तो हिज शॉप जो है दैट विल बी प्लेस कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो ये मैंने आपको विद इन इंडिया का एग्जांपल दिया है। आउटसाइड इंडिया का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि चाइना से अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी भी XYZ कंट्री से कुछ गुड्स इंडिया में आ रहे हैं फॉर रिपेयर के लिए, है ना, जिसके ऊपर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आप एक बार अपनी बुक से गो थ्रू कर लेना, वहां पे परफेक्ट एग्जांपल्स दे रखे हैं। नाउ फिर कहते हैं व्हेन सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो आपका क्या कंसिडर कर लिया जाएगा, जहां पे भी गुड सिचुएटेड और आप इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट प्लेस वी विल कंसिडर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये वाला पॉइंट है। इसके रिगार्डिंग मैंने काफी क्वेश्चंस देखे हैं बाकी दूसरे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में, एक जस्ट गो थ्रू विद दैट। कहता है ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3A, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। वो कौन सी सिचुएशन है, कहते हैं कि गुड्स आर टू बी टेम्परेली इंपोर्टेड इनटू इंडिया, कि गुड्स जो है वो आपने इंपोर्ट किए हैं इंडिया में, आप उसको कुछ रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और आप उसको इमीडिएटली एक्सपोर्ट कर देते हैं विदाउट यूजिंग, तो ये वाला क्लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या किया आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ गुड्स आए, आपने उस पर रिपेयर प्रोवाइड किया और उसको आपने यूज किया, ठीक है, तो उस केस के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा आपका ऊपर वाला क्लॉज। बट लेकिन अगर आप उस पर रिपेयर करके उसे वापस भेज रहे हैं, तो उस केस के अंदर ये वाला जो क्लॉज है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। that okay, so that was section 13 subsection A. Section 13 subsection 3B says place of supply of services on goods, services supplied to an individual representative, either the service receiver acting on behalf of receiver where the required physical presence of the recipient. एक मिनट, just give me a second, है ना, just गाइस कैन आई वाइंड अप दिस क्लास। आज मेरे को थोड़ा सा कुछ अभी इमरजेंसी आ गया है, सो आई डू ये वाला जो सेशन है वो मैं बाकी रिकॉर्डेड आपको भेज देती हूँ, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरी है, किशन आपकी आई थिंक सो 2 क्वेरीज हैं, प्लीज व्हाट्सअप मी, है ना। तो अभी मैं ये सेशन थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, लिटिल इमरजेंसी, सो मैं आपको ये रिकॉर्डेड कर सारा भेज देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट।